So, in method of preparation of haloarenes, now I'm going to explain Hunts-Dicker reaction. Hunts-Dicker reaction. Okay. So, what is this reaction? See here. It is called what? Silver benzoate. Huh? Silver benzoate when treated with the Br2 in presence of CCl4 and heat. So it will give the product like bromobenzene plus AgBr and plus carbon dioxide. Huh? Bromobenzene. One more method here. This is called what? Decarboxylation of halogenated acid. So now next method. Decarboxylation of halogenated acids. Halogenated acids. ठीक है? ये क्या है यहाँ पे देखो? Reaction C6H4 COONA as well as here Br attached, and here I'm taking sodium hydroxide heat. So it can be ortho, it can be meta or para. Bromobenzoic acid. Huh? So this whole group will eliminate it from here, and it form the product like C6H5Br plus Na2CO3. This is called what? Bromo benzene. Okay, bromobenzene. Okay. Okay. Now from phenol. Next method from phenol. From phenol. देखते हैं. यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं. क्या राइट हियर क्लोरोबेंजीन can be prepared by the action of phosphorus pentachloride. Huh?
on phenol. The yield is, however, poor, very poor कह सकते हैं, very poor because of side reaction. Giving triphenyl phosphate triphenyl phosphate. This is what TPP. To get better yield, little of TTP is added in reaction mixture. कैसे होगा देखो यहाँ पे. If I'm taking phenol here, phenol, इसका रिएक्शन करा दिया PCl5 से, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, क्लोरोबेंजीन प्लस we get this BOCl3 and HCl. This is the reaction. ठीक है, इसको बोलेंगे फिनॉल, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन. एंड वन मोर मेथड हियर, मैंने ऑलरेडी इसको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं. दैट इज व्हाट, लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड. Laboratory method, and this is what Sandmeyer reaction. Laboratory method is what, Sandmeyer reaction. Okay, Sandmeyer reaction. देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है. Sandmeyer reaction, ठीक है. सो यहाँ पे जो मेथड है इसी को हम लोग बनाते हैं, दैट इज व्हाट लैब मेथड. और मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था ये मेथड क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लाइक दैट एनिलीन, इसी को कहते हैं एनिलीन. बेंजीन पे NH2 ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनिलीन. फिनाइलामाइन, एनिलीन, ये भी एक प्राइमरी अमाइन है. इसका रिएक्शन कराएंगे HNO2 से, नाइट्रस एसिड, nitrous acid is unstable. It is prepared by the mixing of NaNO2 plus HCl at 273 to 278 Kelvin temperature. It gives the product like N triple bond NCl minus or plus. ठीक है, this is called benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से HCl में, ये बनता है क्लोरोबेंजीन. और यही तो हमें प्रिपेयर करना था, प्लस N2 निकलेगा. इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोबेंजीन एंड सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है.
नाउ वन मोर मेथड इज हियर, रेस्टिंग मिक्स। कैसे बनता है उससे देखते हैं यहाँ पे। रेस्टिंग मेथड, देखिए रेस्टिंग मेथड कैसा है। इन दिस केस 2C6H6 treated with HCl and O2 in presence of Cu2Cl2 and heat. So it will give the product like 2C6H5Cl plus 2H2O. This is our product, right? So these are the method of preparation of alkyl halides and haloarenes, right? इतने मैंने बता दिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloarenes and haloalkanes। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes and haloarenes। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes एंड haloarenes, चलिए देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल सा बातें हैं, जो कलरलेस है और स्टार्टिंग मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट। अदर हेलो अल्केन्स अप टू द 18। ऐसा मैं लिख के देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये इसको लिख के रखते हैं, लाइक CH3Cl, ऐसा कह सकते हैं, CH3Br, CH3F, ठीक है, एंड C2H5Cl आर कलरलेस gases एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अप टू C18 कलरलेस स्वीट स्मेल लिक्विड, राइट। ये सब कैसे होंगे? अप टू 18 लिक्विड स्टेट में होंगे, राइट। एंड हायर मेंबर, हायर मेंबर्स सॉलिड, यस, और कलरलेस सॉलिड। ठीक है, so all are colorless, huh? कलरलेस सॉलिड के लिए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जब हम हेलोरेंस की बात करते हैं तो हेलो अल्केन्स की बात हो गया, हेलोरेंस की बात करेंगे तो हेलोरेंस में क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हेलोरेंस जनरली कलरलेस लिक्विड, हाँ, कलरलेस लिक्विड।
राइट, विथ प्लीजेंट ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये सारी चीजें। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, हेलो अल्केन्स की बात करने जा रहा है, राइट। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होगा, आर आई इज व्हाट, हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आर बी आर, हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आर सी एल। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, राइट ना, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज इंक्रीजिंग द साइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इसका, अब सपोज यहाँ पे मैंने अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज किया तो क्या होगा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन, सी, इफ आई एम टेकिंग हियर CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, so definitely its boiling point what increases. Yes. So we can write here boiling point increases. Are you getting my point? Boiling point increases. Okay. But due to the branching, when branching increases, then boiling point decreases, right? So we can say that boiling point of primary alkyl halide will be greater than the secondary. Secondary will be greater than the tertiary. Okay. Because of what? When branching increases, then definitely van der Waals force of attraction decreases and its boiling point what decreases, right? आप समझो जरा, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर प्राइमरी है, परफेक्टली अरेंज है, एक दूसरे से पैक होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर ब्रांचिंग होगी तो परफेक्टली अरेंज नहीं होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। So that's why primary have more boiling point than secondary. Secondary is what? Tertiary. But number of carbon should be same. And here when we increasing the number of carbon, then boiling point increases because of increasing the mass. Okay? चलिए, ये चीजें हो गई यहाँ पे। ये तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, इसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, हाइलो अरेंज की बात कर लेते हैं। हाइलो अरेंज, तो हाइलो अरेंज में क्या होने जा रहा है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो ये लगभग सेम होते हैं। वी कैन राइट हियर, हाँ, boiling point and melting point of aryl halide are nearly same as that of haloalkanes. Haloalkanes, ठीक है।
number of carbon same. If alkyl halide and the haloarenes, yeah, aryl halide having the same number of carbon, then definitely its melting point and boiling point is approximate same. Okay. Okay. The boiling point की बात करेंगे, decreasing order तो क्या होगा यहाँ पे? ARI is having more boiling point than ARBR, aryl bromide, that is greater than the aryl chloride, and that will be greater than the aryl fluoride. This is the decreasing order of the boiling point. Okay. In the same case, generally melting point of the para isomers is always higher. यहाँ पे देखो थोड़ा सा important point है यहाँ पे. I'm writing this important point here. Generally melting point of para isomer is always higher than that of ortho and meta. Ortho and meta isomer. ठीक है. Why? Due to para isomers is more symmetrical, huh? More symmetrical, and hence its molecules pack closely. Closely packed. Okay, that is the reason. So normally we can give the example like if I'm taking here orthodichlorobenzene, if I'm taking metadichlorobenzene, and here I'm taking paradichlorobenzene. So this is orthodichlorobenzene. Metadichlorobenzene. And here paradichlorobenzene. ये हो गए, राइट. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखिए, when I'm considering boiling point, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 453 केल्विन. नो नीड टू लर्न इट, जस्ट देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट है. 446 केल्विन, and here I'm taking this 448. मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, this is what 256 Kelvin, 249 Kelvin, 325 Kelvin. So you are observing here बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, राइट ना. तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकली आप देखोगे ना यहाँ पे और यहाँ पे कैसा रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिमेट्रिकली ये अच्छे से पैक्ड होते हैं. दैट्स व्हाट इज बेटर. ओके. नाउ आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द solubility. Solubility.
तो हेलो अल्केन्स आर पोलर, ये देखो ये होता है हेलो अल्केन्स माइनस एंड प्लस, so we can say that haloalkanes polar molecule, राइट। इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है लगभग कितना होता है, 2.05 to 2.15 डाइन। ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। But it they are insoluble water because, क्योंकि पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए बट नहीं होता, बिकॉज ऑफ व्हाट, दे डू नॉट एबल to form hydrogen bond, hydrogen bond, right now with water molecule, ठीक है। So they are soluble in organic solvent, कहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, दे आर इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं यहाँ पे, जस्ट मिनट, ओके। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, tetrachloride, right, etc. These are the organic solvent in which this haloalkanes are dissolved, ठीक है। अराइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो we can say that अराइल हैलाइड्स, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, So benzene is a non-polar solvent, no? yes And yes, the solvent benzene is is polar. non-polar solvent, organic solvent, So it won't get dissolved in benzene, right? yes yes, but because of the, it is insoluble in water, that's why this will dissolve in the organic solvent like benzene, alcohol, ether, chloroform, right, carbon tetrachloride. So these are the non-polar solvent, and organic solvent are mostly non-polar solvent, except some like that alcohol is little bit polar. But this haloalkane की बात करते हैं, this is what soluble in the non-polar solvent instead of polar, while it is the polar molecule. It is polar molecule, so on that basis we can say that it should be dissolved in the water, but it is not dissolving insoluble in water because it not form the hydrogen bond with the water molecule. And because of the not forming the hydrogen bond, these are not dissolved in the water, these are dissolved in the organic solvent like the benzene, alcohol, ether, chloroform, etc. Okay. Now aryl halide is what? Insoluble in water, but readily miscible in the organic solvent.
organic solvent, right? ठीक है. Next part is what? Density. What about density? So we can say that chloroalkane means RCl are lighter than water. Okay. Whereas RBr and RI are heavier. So their decreasing order of density is what? Definitely Ri. Miscible in organic solvent. This is miscible. Huh? This is what? Miscible in organic solvent. Okay. Okay. Just what it is saving. Okay. Solvent. Okay. और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इट इज व्हाट? ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी RCl. ठीक है. When number of halogen increases, then what is the effect on the density? So we can say that like CH2Cl2, CCl3 chloroform and CCl4. Its density increases. Number of halogen increases means what? Density increases. Clear? Okay. In case of aryl halide, heavier than water. ठीक है. और their density is what? Same. ARI will be greater than the ARBr. This will be greater than the ARCl, right? Etc. So this is the decreasing order of the density. ये सब सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. अब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन भी आता है. तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट. So as we know that haloalkanes are what? Polar molecule. Okay. This is what? Polar molecule, right? Because it is more electronegative, sharing of electrons is shift here. So we can say that polarity depend on electronegativity. ठीक है. इस पे डिपेंड करेगा electronegativity of halogen of X. So on that basis we can say that if I am taking this CH3Cl, CH3F, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे CH3Br एंड CH3I ये ले लिया. तो अब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे यहाँ पे. तो इट्स डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? 1.86. Here dipole moment is what? 1.84.
हियर 1.83 और यहाँ पे इसका 1.63 dipole moment. So we are observing here this dipole moment is what decreases, right? So we can say that mu is what decreases. Dipole moment mu, this is what decreases. Sorry. So here I'm writing according to the electronegativity. So we can say that fluorine is more electronegative than chlorine. तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेट सेम है या थोड़ा सा इसका कम है. रीजन बिहाइंड दैट स्मॉल एटॉमिक साइज, राइट? सो फ्लोरोमीथेन इज लेस देन द फ्लोरोमीथेन. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? वेरी स्मॉल साइज, राइट? तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यों है ऐसा. We write here due to very small atomic size of fluorine. तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काम करता है. दैट्स व्हाई इट बिकम व्हाट लेस, राइट? हैलोरेंस की बात करेंगे देन व्हाट? हैलोरेंस. सो हैलोरेंस में अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं तो वी कैन से दैट फ्लोरोबेंजीन मींस ARF is less than ARCl is less than ARBr and approximately equal to the ARI. Okay. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का. सपोज अगर इसका डाइपोल मोमेंट 1.60 है तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है 1.69. यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट लगभग दोनों का हो जाता है 1.70. ओके. नाउ चलिए, यहाँ पे कभी कभी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आता है. तो हाउ टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ. देखो कैसे कैलकुलेट करने वाले मैं बताता हूँ आपको. ये resultant dipole moment of isomeric dichlorobenzene. इसका मतलब समझ आया बेटा आपको? लाइक दैट आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ. तो आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन आर कैलकुलेटेड बाय वेक्टोरियल मेथड. देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस मेथड इज व्हाट? म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 इंटू μ2 cos थीटा. ये फार्मूला होता है. जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, इफ आई एम टेकिंग हियर पैरा क्लोरोबेंजीन, दिस इज व्हाट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. और यहाँ पे सिंपल है कि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा 0 होगा.
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, राइट। देखो यहां से इसका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में, देन इट्स डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, जीरो। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इट्स सिंपल। बट व्हाट अबाउट दिस, if I'm taking orthochlorobenzene like Cl and Cl, हाँ यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है, और ये तो है अपने पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो देखो इन दोनों को लाइन को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो हमें कैसा मिलेगा, एंगल कैसा मिलेगा, 60 डिग्री। यस डेफिनेटली यू गेट दिस 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है बेटा कितना मिल रहा है अपने को, 60 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट इट। यहाँ पे जो माइक्रो आएगा, जो म्यू आएगा, दैट इज व्हाट 2.54 dr। बट यहीं पे अगर मैंने मेटा ले लिया, देन व्हाट विल गेट हियर, देखो Cl and Cl, नो व्हाट द बॉन्ड एंगल, इंक्रीज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 120 आ जाएगा, राइट ना, यहाँ पे आ गया। So now this bond angle become what, 120। Is it clear? यहाँ पे तो इसका माइक्रो, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा कितना आ जाएगा, लगभग 1.72 d, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा पोलर है, तो डेफिनेटली आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर देन द मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज व्हाट, जीरो, इट इज नॉन पोलर। मान यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका कितना आ गया, जीरो हो गया। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं और दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पहले से बहुत अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे आपका एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग चालू हो जाएगा, राइट। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं तो आप अच्छे से रिवाइज करके आओ रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद ये सब जहां पे रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको करने में मजा आएगा। चलिए देखते हैं, पहले कुछ एक रिएक्शन देखते हैं, पहले बात करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अरे अनुश्रेष्ठ क्या हो गया तुमको, कितनी बार आ जा रहे हो अनुश्रेष्ठ, व्हाट हैपेंड? अनुश्रेष्ठ, यस सर। दो दो आईडी से कैसा लॉगिन कर रहे हो बेटा, क्या हो गया प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी एक ही आईडी से किया। नहीं अभी एक वो हो रहा पता था। नहीं क्या, वो बहुत हैंग हो रहा है बार बार। हाँ वही ना, बार बार आप आ जा रहे, मुझे लगा कोई फेक आईडी से तो आ रही है ऐसा ना। चलेगा ठीक है, तुम ही हो ना, ठीक है। हाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अल्केन्स। देखो यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बता देता हूँ। SN1 SN2 का मैं बात करता हूँ, SNGP का और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, SNI की बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको SN1 SN2 का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑलरेडी आपने तो किया है, बहुत अच्छे से किया है, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने कराया है। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ, उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल फिर अच्छे से मीन्स रिएक्शंस कर पाएंगे अच्छे से। हाँ तो चलो पहले यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते हैं हम लोग। हाँ वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कैसे है, हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr
is more reactive than RCl is more reactive than RF. सिंपल है, राइट? अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात करेंगे तो डेफिनेटली 3 डिग्री RX will be more reactive than 2 degree RX will be more reactive than 1 degree RX, right? चलिए, नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते हैं प्राइमरी में तो कैसे लिखेंगे हम लोग? CH3X will be more reactive than C2H5X will be more reactive than C3X, right? ना X, ठीक है? तो जो बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड होगा, राइट, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एंड हैलोजन, राइट, तो वहां पे जल्दी ब्रेक होगा और वहां पे बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट CX के इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, ऐसा. ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये जो पोलैरिटी है ना वो दो टाइप के रिएक्शन देती है. एक देती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक देती है एलिमिनेशन रिएक्शन. जरा यहाँ पे कंक्लूजन देख लो इसका, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको, जरा समझना इसको. हाँ, वी कैन से दैट दिस पोलैरिटी gives two types of reaction. पहला रिएक्शन देता है यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. राइट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये रिएक्शन कैसा होगा? देखिए यहां पे RX है, सॉरी, इस RX पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं. न्यूक्लियोफाइल मींस व्हाट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस होगा यहाँ पे. तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? प्लस के पास में, और ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. सो प्रोडक्ट बन गया अपना NuR प्लस X माइनस. राइट, अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है, एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और ये पास होता है ट्रांजिशन स्टेट से. राइट, इसका मतलब ये जो यहां पे फॉर्म हुआ वो कैसा होगा? ये जो NU है न्यूक्लियोफाइल, वो स्लोली R के नजदीक आएगा और X जो है वो R से दूर जाएगा. This is called what? Transition state. And after transition state, it will convert into the product. तो कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है दो रास्ते से, बाय पासिंग थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, अदरवाइज बाय पासिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. बहुत ध्यान से समझना. अभी सेम रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूं दूसरा, in which first of RX go for the bond breaking
Heterolysis. This bond will break first. So minus X will eliminate and it form the R plus. And R plus is carbocation. It's intermediate. Reaction intermediate. And this step is called what? Slow step process. यहाँ पे हो गया बेटा slow. और जो slow step होता है उसको ही बोलते हैं हम लोग RDS. Rate determining step. So rate determining step जो हुआ उसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. सेकेंड स्टेप माइनस. और ये जो प्रोसेस होगा कैसा होगा? फास्ट होगा, वेरी फास्ट. दिस विल बी अटैक हियर एंड नाउ इट गिव द प्रोडक्ट लाइक RNU. So now this is called what? SN1 mechanism. बहुत ध्यान समझना. In both cases, alkyl halide substitution reaction या alkyl halide give the nucleophilic substitution reaction. Nucleophile means what? Reagent which have the high electron density, electron rich species, otherwise negative charged ion. So when halogen replaced by the nucleophile, it form the compound, and this reaction is called what? Nucleophilic substitution. But this nucleophilic substitution takes place by two ways, SN1 and SN2. When it pass through the SN1 and when it pass through the SN2, both one is the nucleophilic substitution. You are observing here. Here Rx converted to the RNU, here Rx converted to the RNU. Both reaction is same. So why sometime it passed through the SN2 and why sometime it is passed through the SN1? So now this is depend upon the solvent as well as the substrate. Substrate in the sense, if our alkyl halide is primary, then this reaction pass through the SN2 mechanism. If our alkyl halide is tertiary, then pass through the SN1 mechanism. So I told you, any reaction pass through the two ways. Through this transition state, otherwise through this intermediate. Any reaction pass through the two ways. It can pass through the transition state. Transition state means what? Where bond breaking and bond formation takes place simultaneously. दोनों चीजें साथ में होती है और ये ट्रांजिशन स्टेट से पास होता है. ट्रांजिशन स्टेट मींस व्हाट? स्टेट ऑफ द रिएक्शन वेयर इट फील द मैक्सिमम एनर्जी, हाईली अनस्टेबल. And second case when it form the carbocation, otherwise any reaction intermediate. So reactant convert to the product by formation of intermediate, otherwise by formation of transition state. So when it pass through the formation of transition state, it's called what? SN2. SN2 in the sense what? This is slow step process. And in slow step, both reactant participating simultaneously, alkyl halide as well as nucleophile. It means what? Rate of reaction, when we consider the kinetic of reaction, so rate of reaction depend upon the both concentration. Therefore, it is what? Second order and bimolecular. Two molecule एक साथ participate कर रहा है, that's why it's bimolecular nucleophilic substitution reaction, SN2. But in this case, two-step process, and in first step only alkyl halide participate, and this is slow step process which convert into the carbocation. After that, nucleophile will attack and it is fast and form this one. So this is one step, two-step process, but step first is slow step where it is RDS. When a reaction takes place in the different steps, then slowest step is called what? RDS, rate determining step. So we can determine the rate only in this step, not in the other step. Step 1, we can determine the rate of reaction. Step 2, we cannot determine the rate of reaction because it is very fast.
So in slow step process, only alkyl halide will use. That's why rate of reaction depend upon the concentration of alkyl halide, not on the nucleophile. That's what is SN1 mechanism. Otherwise, this is called what? Unimolecular nucleophilic substitution reaction. So what is the reactivity order? Already I had given this. I have given this reactivity order of the SN1 as well as SN2. I'm again giving it. ऑर्डर ऑफ SN1. अभी सिर्फ मैं जनरल चीजें बता रहा हूं कि पोलरिटी की वजह से कौन सा रिएक्शन होता है, तो पहला SN रिएक्शन हो सकता है, राइट. SN1 का ऑर्डर क्या है बेटा यहाँ पे? जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो अच्छे से SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा. तो इसका मतलब वी कैन से दैट बेंजाइल, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं, देन अलाइल, because benzyl carbocation is more stable than allyl, approximate same होता है. Then tertiary, then secondary, then primary, then methyl. Is it clear? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया C6H5 thrice CX, it will be more reactive through SN1 as compared to the C6H5 twice CHX. It is more than the C6H5 CH2X. But when I'm considering this SN2, reason behind that only you have to consider the stability of carbocation. अगर रिएक्शन पास हो रहा है इंटरमीडिएट से, तो अगर इंटरमीडिएट जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. ये अपने दिमाग में रखो, ये अपने दिमाग में रखो. जो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई मी. वेरी गुड. और SN2 के लिए मैं बता रहा हूं, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट से पास हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. सो SN2 का ऑर्डर क्या होगा बेटा यहां पे? नाउ आई एम टेकिंग दिस मिथाइल, more reactive than primary, more reactive than secondary, more reactive than tertiary. It is more reactive than allylic. It is more reactive than benzyl halides. I hope understood this part. ठीक है. तो कोई भी टर्शियरी हैलाइड होगा, यहाँ पे देखो नोट लिखता हूं मैं, I'm writing this note. Tertiary alkyl halide tertiary alkyl halides are practically inert to substitution by SN2. अगर हम टर्शियरी की बात करने जा रहे हैं ना बेटा, तो टर्शियरी जो होगा वो SN2 के थ्रू नहीं होगा, जल्दी ऑलमोस्ट इनर्ट होता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस. मैंने अच्छे से आपको मैकेनिज्म में बताया क्या होता है, राइट. चलिए, दूसरा रिएक्शन इसकी वजह से हो सकता है. किसकी वजह से? पोलैरिटी की वजह से. सेकेंड रिएक्शन इज पॉसिबल एलिमिनेशन रिएक्शन. So now second we discuss about the elimination. मैं अभी SN1 SN2 और सारे रिएक्शंस में बताने वाला हूँ आपको. जनरल रिएक्शन में आपको इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ, फिर बताता हूँ.
सेकेंड एलिमिनेशन, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में कराने वाला हूँ अच्छे लेवल का। लेकिन वंस अगेन है, मैं बोलता हूँ आपको, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट अच्छे से पढ़ के आओ, SN1 SN2 एलिमिनेशन का E1 E2 अच्छे से पढ़ के आओ, जो एग्जांपल्स कराए वो देख के आओ, क्या कंडीशन है वो देख के आओ, तो यहाँ पे फिर आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा, राइट। यूट्यूब पे है, आपको पता होगा, राइट। रिएक्शन मैकेनिज्म के 24-25 लेक्चर्स हैं, तो आप देखो, उसमें से सब्स्टिट्यूशन ही पहला बताया है, तो अच्छे से देख लो वहां पे। और जिसने नोट्स बनाया होगा, जो रेगुलर लेक्चर लिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है, आगे का रिएक्शन क्या होगा। ओके, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी गुड, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, अब एलिमिनेशन पोलैरिटी की वजह से कैसे होगा। इफ आई एम टेकिंग R, CH, here I'm taking H, here I'm taking X and H, sorry। इस केस में होगा क्या, सबसे पहले फिर से कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये स्लो स्टेप हो रहा है और -X निकलेगा यहां से। हेटेरोडिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो क्या बना प्रोडक्ट, यहाँ पे R CH H, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में अगर ये यहाँ से X निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगा, बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे फास्ट होगा ये, और ये जो बेस है वो कैसा स्ट्रॉन्ग है, बेस B-। तो ये जो बेस है वो क्या करेगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो प्रोटोनेटेड है, मतलब जो एसिडिक कहेंगे या फिर जो अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, इसको इसको अप्रोच करेगा और इसको लेके चला जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएगा, इसी को तो कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेटा वो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड CH2, यही तो हुआ, -BH निकल गया यहाँ से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, इसके लिए हम इसको कहेंगे E1 रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे SN1, और एलिमिनेशन होगा बोलेंगे E1, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन कैसा होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया R CH CH और X, स्लो हो रहा है, बट यहां पे डायरेक्टली अब बेस अटैक करेगा, एक साथ दोनों चीजें हो रही है, मैंने आपको बताया और अभी रिसेंटली बताया था। यहाँ पे क्या होता है, E2 रिएक्शन में क्या होता है, पेरी प्लेनर, राइट ना, आपको याद होगा शायद। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक साथ सारी चीजें होंगी, इंटरमीडिएट में पास होगा, राइट ना। दिस रिएक्शन आल्सो पास टू द इंटरमीडिएट। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, it will attack here, this electron will shift here and this bond will break.
बेस ने अटैक किया, हाइड्रोजन को ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोटा, डबल बॉन्ड हो गया, लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये जो पास होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे BH बॉन्ड बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और फिर से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, राइट है। एंटी पेरीप्लेनर इसी को बोलते हैं। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए हमेशा। जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, बीटा एलिमिनेशन, इसी को तो बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। दोनों बीटा एलिमिनेशन है, E1 एंड E2। ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, ये 1 स्टेप प्रोसेस हो गया। ये इंटरमीडिएट के थ्रू पास हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पास हो रहा है। यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो ये रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा, ये रीअरेंजमेंट के लिए नहीं जाएगा, राइट। So this is passed through the transition state. So what product we'll get here? So we get the product like R CH double bond CH2। यही तो बना प्रोडक्ट, यही तो प्रोडक्ट बना। प्लस और क्या निकला, BH एक साथ निकल गया और X निकल गया यहाँ पे माइनस। दिस इज द प्रोडक्ट। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। राइट। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं SN1 सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखते हैं। वेरी गुड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन है इसमें, राइट। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ओके, सारे रिएक्शंस मैंने बताया आपको, फिर भी वन वन रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे EX ले लिया, AgOH ले लिया, मोएट सिल्वर ऑक्साइड से मिलता है, हीट कर दिया इसको, तो विल गेट दिस व्हाट ROH प्लस AgX, सिंपल रिएक्शन। अदरवाइज RX ले लिया मैंने, KOH ले लिया एक्वस, हीट किया, प्रोडक्ट क्या मिला ROH प्लस KX। आ रहा है समझ में? जैसे देखो यहाँ पे, अब इसी को मैं बताता हूँ। अगर इफ आई एम टेकिंग हियर CH3Br और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने KOH से, एक्वस, यहाँ पे हीट किया, तो प्रोडक्ट तो यही मिलेगा KBr। इसके मैकेनिज्म पार्ट को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जिसको भी नहीं याद होगा थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं मैं। मैकेनिज्म ये बेटा क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड अगर होगा तो किसके थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा। ये प्राइमरी है, तो दिस इज व्हाट SN2 मैकेनिज्म। ये तो समझाने की बात नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक।
Now I'm the structure of this Br, मैं 3D स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। H H और H, यही तो है मिथाइल ब्रोमाइड। बेटा मिथाइल ब्रोमाइड पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दिस KOH विल डिसोसिएट K प्लस एंड OH माइनस, और OH माइनस जो होगा वही न्यूक्लियोफाइल होगा, NU कहेंगे इसको। तो आप देखो जरा यहाँ से फ्रंट साइड अटैक की पॉसिबिलिटीज नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी कैसा है, निगेटिव है। So definitely it will not attack from front side, it will attack from what, back side. Back side attack possible, huh? और ये रिएक्शन पास होगा ट्रांजिशन स्टेट से, तो बैक ये स्लो हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है। So this OH come towards this carbon and Br go away from this carbon. At this stage, this reaction feel the maximum energy. ट्रांजिशन स्टेट बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं दोनों चीजें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चीजें रिवाइज हो जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट में मैक्सिमम एनर्जी होगी यहाँ पे। So this OH come towards this carbon and Br go away from this carbon, and here the stage where neither this carbon bromine bond completely break nor carbon oxygen bond completely form. At this stage, for very short time, this carbon fill the 5 valency, that one is highly unstable and highly energetic. After breaking of this bond, where this B or carbon bromine bond will break down, then it form the product. What kind of product will form? This is important part. So in this case, we get this kind of product. Okay, here is the H, H, H and OH. So what is the difference in the reactant and product? Its configuration is the different. In this case, we are present in this side, but here OH present in this side. This is called what? 100% inversion product. How come to know it is 100% inversion? Suppose instead of this methyl bromide, if I'm going to take this optically active compound where it's all 4 valencies satisfied with the different atom or molecules, instead of this normal methyl bromide, if I'm taking this optically active compound, suppose here I'm taking HA, here I'm taking HB, HC, all are different, right? Okay, suppose here I'm taking this, here I'm taking this what? Deuterium, here I'm taking tritium. Now it become optically active or symmetrical carbon. So here we get the product like H, D and Br. So now if I'm taking this is the dextrorotatory compound, then definitely we get this what? Levorotatory compound, totally inverse. Just like umbrella in high wind. तेज बारिश में तेज हवा चलती है तो क्या होता है? अम्ब्रेला पूरा उल्टा हो जाता है। सेम थिंग, अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक इट्स इन्वर्जन, इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी व्हाट? टोटली इन्वर्टेड. So if I'm taking the dextrorotatory isomers, then we get the levorotatory isomers. If I'm taking levorotatory, then we get the dextrorotatory. Complete inversion. This is SN2 reaction mechanism. I hope understood.
Now same reaction if I'm going to take with the third butyl bromide. Now here I'm going to take. So in this case, we can say that rate of reaction directly proportional to methyl bromide as well as nucleophile. बिकॉज दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों स्लो स्टेप से जा रहा है, इसके अलावा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाट इज बाइमॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? नाउ आई एम टेकिंग हियर CH3 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 Br. It also treated with the aqueous KOH under heat. It will give product CH3 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 OH plus KBr. This is called what? Tert butyl bromide, means tertiary. And here is what? Tert butyl alcohol. I hope understood this part. So when I'm going to consider this mechanism, so this mechanism passed through the SN1 mechanism because it is tertiary. SN1 के थ्रू पास होगा बेटा. यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा? यस, आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? यस सर. ओके. देखो, अब ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है. पहला स्टेप में क्या होने वाला है? ये जो मैंने टर्शियरी लिया ना, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, यहाँ पे मैकेनिज्म ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा. मैकेनिज्म पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं. SN1 की बात कर रहा हूँ मैं. So this is 2-step process. In first step, what we'll get here? Again, I'm making this 3D structure. 3D in the sense, this is called what? Wedge and dash structure, which indicating the backside configuration. By this way, I can explain this configuration. That's why I'm taking this. Br. Here is the CH3. Here is the CH3 and CH3. So first of all, it go for the electrolysis in presence of polar aprotic solvent. You got it? Sorry, polar protic solvent. आपको पता है ना polar protic, polar aprotic? याद है कुछ? Yes sir. Yes. So it go for the electrolysis. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन हो, ये क्या करेगा? इसको पूरा कवर कर लेगा, घेर लेगा, फिर से इसके पास नहीं आने देगा. दैट इज द रिक्वायरमेंट. और ये कैसा होगा बेटा? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस स्लो होगा. स्लो को ही क्या बोलते हैं हम लोग? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो स्लोली दिस Br go away from this carbon. This is स्लो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. अब ब्रेकिंग के बाद क्या बनेगा यहाँ पे? जस्ट मिनट. ब्रेकिंग के बाद क्या बनने वाला बेटा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा. यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन.
CH3 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 प्लस और यहाँ पे Br माइनस। This is the product. Now listen, in this case, here this carbon is what? sp3 hybridized. That's what is tetrahedral. Now this carbon is what? sp2 hybridized. और कैसा हो गया? प्लानर। इसके लिए मैं यहाँ पे डैश और वेज नहीं बनाया, बिकॉज इट बिकम व्हाट? प्लानर। सो व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेकंड स्टेप? अब देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। प्लस नाउ OH will attack here. न्यूक्लियोफाइल के अटैक के दोनों चांसेस इक्वली हैं, फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज बैक साइड अटैक, बिकॉज ये प्लानर हो गया। ए इज व्हाट? फ्रंट साइड अटैक। और बी कैसा है? बैक साइड अटैक। राइट है? So two product will get here, two types of product will get here, not two product, two isomeric product will get. Like this, if it is attacked from front side, then we get the same product which I have taken in the reaction. OH. And if it attacks from the back side, then we get the inverted product. Inversion. CH2. So this is called what? Retention. And this is called what? Inversion. Okay. Retention and inversion. Normally कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि both one is what? 50-50%. 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। बट एक्चुअली कैसा होता है? रिटेंशन लेस होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है। इन्वर्जन इज मोर एंड रिटेंशन इज लेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, so that optically active compound will give the what? Racemic mixture. If I'm taking D or L, then we get the mixture of the D and L. That is called what? Racemic mixture. तो ये डिफरेंस हो गया SN1 और SN2 में। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उसका सबस्ट्रेट, उसका सॉल्वेंट, ये सब डिसाइड करते हैं कि किसके थ्रू जा रहा है, SN1 अदरवाइज SN2 के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Yes. Yes, sir. Very good. तो अब बस कुछ एग्जांपल देखने में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, कुछ एग्जांपल देखने हैं। ठीक है, तो इसका जनरल एग्जांपल्स मैं सब दे देता हूं, फिर एलिमिनेशन की बात करेंगे, उसका भी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। कुछ रिएक्शंस, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन विद एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, रोना बोल सकते हैं इसको।
सोडियम एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो क्या रहा है यहाँ पे, when alkyl halide treated with the sodium alkoxide under heat, तो सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्लस NaX, दिस इज व्हाट ईथर, ये हो गया अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, विलियमसन सिंथेसिस। आ गया समझ में ये, दिस इज अवर विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब इसके बाद मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं लूंगा, फटाफट जनरल रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी आपको पता चल गया क्या होने वाला है। सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन करा दिया, हीट कर दिया, क्या मिलेगा अपने को, इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है रिएक्शन आपको, सब सिंपल है, राइट। चलिए एक एग्जांपल बताइए मुझे यहाँ पे, इफ आई एम टेकिंग हियर CH3 CH2C CH एंड CH3, बेटा यहाँ पे ले लिया मैंने Br और यहाँ पे ले लिया CH3, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने C2H5 ON से हीट कर दिया। अब बताओ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने को। चलिए मैं बता रहा हूँ, दो प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर और माइनर। अब बताओ क्या मिलेगा मेजर, क्या मिलेगा माइनर। देखिए बेटा यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, CH3 CH2C CH3 C2H5 CH3, और यहाँ पे लिया तो क्या मिलेगा, CH3 CH CH, और यहाँ पे आएगा CH3 O C2H5 एंड CH3, ठीक है। ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट, मेजर एंड माइनर, ठीक है। व्हाट इज मेजर, देखो यहाँ पे ये SN1 के थ्रू जाएगा, ये निकलेगा कार्बोकैटायन बन जाएगा,
जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा, या मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, या हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, कैटायन यहाँ पे बन जाएगा टर्शियरी, इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया मेजर। आपको समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes, yes. तो ये 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। इसी तरह से बाकी में आपको देखने पड़ेंगे, इसी तरह से कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलेगा, अभी आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, राइट। तो मुझे जम नहीं रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप करता ओके हूँ, फिर सर। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आज, हाँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलिए।